بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو تنویر ریئیکٹ۔ ذاکر نائک کی پہلی اور مکمل پوڈ کاسٹ آ گئی ہیں۔ اس نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کہیں۔ تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے دوستو، ویڈیو کے اینڈ تک لازمی ساتھ دیئے گا۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک کی پوڈ کاسٹ کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی سنایا کہ کیسے انہوں نے ہجرت کی، اس کی وجہ کیا بنی اور کیوں بھارت کی نئی حکومت ان کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس قسط میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کے مزید پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، یہ بھی آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ ناظرین، میزبان نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا موقع کبھی آیا کہ آپ نے سوچا کہ مجھے دعوت دینے کا طریقہ بدلنا چاہیے؟ کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میرے طریقے میں شاید یہ غلطی رہ گئی، مجھے اپنا پلان تبدیل کرنا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جہاں تک غلطیوں کی بات ہے تو میرا خیال نہیں کہ میں نے کوئی ایسی غلطی کی کہ ماضی میں جا کر اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی خواہش ہو، کیونکہ اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ میں نے اس کی مرضی سے جسم کے ڈاکٹر سے روح کے ڈاکٹر بننے کا سفر پورا کیا۔ میں دائی بنا تو اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی سے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، مگر وہ بنا اور اس پر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ وہ اب دعوت کے راستے پر آ گیا ہے۔ پروفیشن چاہے جو بھی اپنائے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے تو میں خوش ہوں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرح اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دعوت کے سفر پر بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے اور پھر لوگ اس کی بات سنیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ مجھے اس لیے سنتے ہیں کہ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں۔ کچھ حد تک یہ درست ہے کہ ایک ایسا شخص لیکچر دے رہا ہو جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر لیکچر دے رہا ہو تو لوگ ڈاکٹر کو زیادہ سنیں گے، لیکن اگر آپ بڑے لیول پر چلے جائیں تو یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا نہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں۔ اور اس کی بہترین مثال شیخ احمد دیدات ہیں۔ وہ صرف چھٹی جماعت پاس تھے۔ چھٹی پاس شخص عیسائی اسکالرز کو چیلنج کر رہا تھا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگ میرے لیکچر میں آئیں تو پھر کوئی انہیں روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ لوگ میرے لیکچر میں نہ آئیں تو کائنات کی کوئی طاقت انہیں میرے لیکچر میں لا نہیں سکتی۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ میں 27 سال کی عمر میں شیخ احمد دیدات سے متاثر ہوا تھا۔ میں بعمل مسلمان پہلے بھی تھا، مگر میرے اندر دعوت کا جنون نہیں تھا۔ میں بس ایک عام مسلمان تھا۔ میرا بیٹا 28 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ قرآن حفظ کر چکا ہے۔ وہ عربی فر بولتا ہے، انگریزی بہت اچھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں لیکن میں نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں میں عربی سمجھتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں کچھ عربی سمجھ لیتا ہوں مگر بول نہیں سکتا، لیکن پھر بھی میں ماضی میں جا کر اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے جیسا بھی رکھا بہتر رکھا۔ بہت سے حافظ قرآن آیات کے حوالے نہیں دے سکتے، مگر میں حوالہ جات کے ساتھ آیات بتاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے۔ I did and I would not do. No, I'm happy with it. Yet I can quote the Quran what Hafiz al-Quran cannot do. The references I give a normal Hafiz cannot do. It is Allah's planning. So I cannot say that is there any mistake which I would not want to do. But if I plan for my son, I would plan something better than my child would. As an average person, so average dai, if a person comes and says I want to become a dai, I will give him a blueprint. And if you see, it doesn't match at all with my childhood. But at the end of the day, the most important is the help of Allah. So with all the education, now my son will doing masters, inshallah he'll do PhD, maybe double PhD, but that really doesn't help in that way. Yes, it does help to a very small level. Doing a degree from the university, whether it be Jamiat al-Imam where you pass from Madinah University, may help you get a job, but for dawah, it's good, but that's not enough. You have to have durus with the top sheikhs. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ زندگی میں کچھ بھی کریں اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہونی چاہیے۔ جب میں نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اسلامی پروگراموں کو کیبل پر چلانے کے خواہش مند ہیں تو ممبئی اس کے لیے بہت مشکل شہر ہے، یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ اس پر کچھ بھی چلانے کے لیے آپ کو انہیں پیسے دینے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کہ اپنی کیسٹ ان کو دیں، وہ کیبل پر چلائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ سفر آج پیس ٹی وی پر جا پہنچا جس کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا اعتراض تب ہوا جب ہم نے کانفرنس کے دوران کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ پولیس نے بھی ہم پر اعتراض کیا۔
भारत में आइन की रूह से हर किसी को अपने दीन की तबलीग, उसकी दावत और फैलाने का इख्तियार हासिल है। इसी तरह तो हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे। तो जब पुलिस ने मुझे कहा कि पब्लिक में कलमा न पढ़ाओ, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये लिख कर दें, जिस पर वो खामोश हो जाते। सिर्फ एक शख्सियत ने मुझे सपोर्ट किया और वो मेरी अहलिया थी। जब हम पीस टीवी चला रहे थे तो हमने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया और ये रिकॉर्डिंग्स सारा साल चलती रहती थी। अब 25% देखने वाले गैर मुस्लिम थे, तो सोचे कि अगर पीस टीवी को 100 मिलियन लोग भी देख रहे थे तो इसमें 25 मिलियन तो गैर मुस्लिम थे। तो जब पीस टीवी पर कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ता तो घर बैठकर उन्हें देखने वाले गैर मुस्लिम भी मुतासिर होते थे और उनको भी तरगीब मिलती थी कि वो भी कलमा पढ़ें। इससे हमारा काम और आसान होता था। ये देखकर हमने सोचा कि हम 100-200 लोगों को कलमा पढ़ाते हैं और उन्हें देखकर घरों में मौजूद हजारों लोग भी कलमा पढ़ रहे होते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में हमारी दावत की खिदमत बहुत अच्छी चल रही थी, मगर अब उसमें रुकावट आ गई और मैं मुंबई में आज होता तो जेल में होता, क्योंकि तमाम दाई जो हुकूमत की हिदायत पर अमल नहीं करते, मोदी उन्हें जेल में डाल देता है। इसी वजह से मैं हिजरत पर भी मजबूर हुआ और अल्लाह ताला के शुक्र है कि हिजरत के बाद मेरे ईमान में मजीद इजाफा हो गया। और इस सब में बेहतरीन बात यह है कि जिन्होंने मेरी दावत पर इस्लाम कबूल किया, इसका सवाब भी आज भी मिल रहा है। लोग मुझे आज भी मिलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने पीस टीवी की वजह से इस्लाम कबूल किया था। एक इंसान होने के नाते ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि माजी में वापस जाऊंगा तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि मैं अपने माजी से बहुत खुश हूँ। If I don't give Shahada, I do agree with you. Maybe I would have worked for another 10 years in Bombay. If I was in Bombay, I would have been in jail now. Because all the top dais who don't follow the guidelines of the government or don't toe the line of Modi, they are behind bars. डॉक्टर साहब का कहना था कि मैंने अरबी सीखने के लिए सऊदी अरब का सफर किया। शेख अब्दुल अजीज तरीफी मेरे उस्ताद थे। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं सऊदी अरब में भी एक इस्लामी चैनल खोलूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत करना, अभी तुम अरबी नहीं बोल सकते, अंग्रेजी में बात करते हो तो लोग तुम्हें मोहब्बत करते हैं, अरबी में बात करने लगोगे तो मुकाबले का रुझान पैदा हो जाएगा। और वो सही थे। मैं जब भारत में था तो मैं अंग्रेजी में लेक्चर देता था, तो मुझे पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि तुम उर्दू या हिंदी में लेक्चर दो, क्योंकि लोगों की अक्सरियत अंग्रेजी नहीं समझती। मैंने सोचा बात तो सही है और मैंने हिंदी में लेक्चर शुरू किए। मेरी ऑडियंस बढ़ गई, मगर हुआ ये कि जो मौलाना और उलमा उर्दू में लेक्चर देते थे उनको ये पसंद नहीं आया। कुछ ने ये फतवा भी दे दिया कि मैं काफिर हूँ। तो मैंने सोचा कि शेख अब्दुल अजीज की वाकई बहुत गहरी नजर है। यही उलमा थे जो मेरी बहुत तारीफ किया करते थे और यही आज मेरे खिलाफ फतवा दे रहे हैं। ये हसद था। तो ये अल्लाह ताला का प्लान था कि मुझे अरबी बतौर जबान बोलना नहीं आई। मैंने कोशिश बहुत की, मगर मुझे ज्यादा समझ नहीं आई। नाज़रीन, मेजबान ने सवाल किया कि आपकी दावत की टेक्निक बहुत अच्छी है और आपकी याददाश्त भी जबरदस्त है, इन दोनों से मुताल्लिक कुछ बताएं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैं उनको जवाब देता हूँ। सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लिहाजा अहले ईमान अल्लाह पर भरोसा रखें। दूसरी सूरह अनकबूत में लिखा है कि अल्लाह की राह में जद्दोजहद करो, और तीसरे नंबर पर अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इल्म नहीं रखते तो उससे पूछो जो जानता है। जब मैं ये चीजें बताता हूँ तो मेरी बात सुनकर कहते हैं ये तो ठीक है, आप बताएं आपकी टेक्निक क्या है। मैं कहता हूँ कि भाई मैं आपको पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह बता रहा हूँ और आप मुझे पहली, दूसरी छोड़कर तीसरी तरजीह का पूछ रहे हैं। अल्लाह की मदद, उसकी राह में जद्दोजहद को तो आप भूल गए, बराह रास्त तीसरी चीज पर क्यों आते हैं? पहले ऊपर वाली दोनों तो पूरी करें। लोगों को पूछना चाहिए कि अल्लाह ताला की मदद कैसे लें, मगर वो ये नहीं पूछते बल्कि टेक्निक का सवाल बार बार करते हैं। तो दावत की तरबियत में हम तलबा को यही बताते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कैसे हासिल करनी है। नाज़रीन, मेजबान ने सवाल किया कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस्लाम के रास्ते में चलने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि मलेशिया और कतर ऐसे ममालिक हैं जो दबाव बर्दाश्त करते हैं और इस्लाम की तबलीग को रोकते नहीं। अगर ये इस्लाम के मुतालिक हैं तो वो इस पर डट जाते हैं। दूसरे मुल्कों की तरह नहीं, इस्लामी मुल्क भी हैं, मगर सियासत की बात आए तो वो लचक दिखाते हैं। मलेशिया में इस्लाम का एक वोट बैंक है, इस्लाम वहाँ ताकतवर है। कतर की तारीख ऐसी है कि वो दबाव बर्दाश्त करते हैं और दाई स्कॉलर्स को भी पनाह देते हैं, उनको आजादी भी देते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि अगर हम अपनी तंजीम को फैलाते हैं तो इन्हीं दो ममालिक में करें।
मेजबान ने सवाल किया कि आपके बेटे ने भी दावत का रास्ता चुना है और अब आप एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसको अपने कंधे से कंधा मिलाकर चलते देखकर आपको कैसा महसूस होता है? डॉक्टर जाकिर नाइक की आंखों में एक चमक दिखाई दी जो किसी भी बाप की नजरों में उस वक्त पैदा होती है जब उसके फर्माबरदार बेटे से मुतालिक बात हो रही हो। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे बेटे ने कहा कि दुनिया में ऐसा होता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, मगर दाई का बेटा बहुत ही कम दाई बनता है। तो इसने मुझे खुशखबरी दी कि वो भी दाई बनना चाहता है। मैं किसी ऐसे स्कॉलर को नहीं जानता कि उसका बेटा भी उसी की तरह स्कॉलर बने। कुदरती तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद भी उसी रास्ते पर चले, मगर ये अल्लाह ताला की देन होती है, जिसको चाहे अता करे। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं, मेरी अहलिया और बेटा फारूक एक मर्तबा एक बुजुर्ग से मिलने गए। उन्होंने दुआ दी कि तुम्हारा बेटा शेखुल इस्लाम बने। ये बहुत प्यारी दुआ थी जो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हम बतौर वालिदैन अपनी औलाद को सही रास्ते का पैगाम दे सकते हैं, मगर हम इस पर चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। कुरान में हमने पढ़ा कि पैगंबर का बेटा भी मुशरिक बना, तो ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको चाहे अता कर दे। हम बस अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकते हैं, बाकी सब अल्लाह ताला पर छोड़ देना चाहिए। तो जब अल्लाह ताला किसी की मदद न करे, डिग्री काम नहीं आती। मेरे बेटे ने मलेशिया में मास्टर किया, PhD का इरादा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको सवालात के जवाब देते देते दावत देना आ गया। मेरे बेटे ने भी लेक्चर सुनना शुरू किए और अब स्टेज पर जाकर भी लेक्चर देता है और लोगों के सवालों के जवाब देता है और उनकी उलझने दूर करता है। ये बहुत अच्छा महसूस होता है कि मेरा बेटा भी अल्लाह ताला की राह पर चल निकला है। इस पर जितना भी शुक्र अदा करूं ये कम है। He started doing own research and in the question answer session. When we started, I used to do twice a week. Then I found that, it is stopping me from other parts of Taiwan. So I made once a week. And my son came back to Malaysia after free graduation. Then the first and third Saturday, I handled the question answer session. डॉक्टर साहब का कहना था कि आज के मुसलमान नमाज को ज्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि जब अल्लाह ताला बुलाए तो लाजमी जाना चाहिए। अल्लाह ताला के बुलावे से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।